وزیر اعلیٰ کے پی پر محکمے میں مداخلت کا الزام، خیبر پختونخوا کے وزیر CNW شکیل خان مستعفی، استعفیٰ وزیر اعلیٰ کو بھیج دیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کسی اور اشاروں پر کام کر رہے ہیں۔ صوبائی حکومت میں جاری انتہائی کرپشن کے ساتھ مزید نہیں چل سکتا۔ کرپٹ لابیز اتنی مضبوط ہیں کہ میں استعفیٰ دینے پر مجبور ہوا۔ ہمیں کرپشن کے خاتمے کے لیے ووٹ ملا، صوبے کو کوئی اور چلا رہا ہے۔ شکیل خان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی سمری دستخط کر کے گورنر کو بھیج دی۔ شکیل خان کا تحریری استعفیٰ ابھی موصول نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کا رد عمل۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے پی کا کہنا ہے شکیل خان کو استعفیٰ دینے سے پہلے ہی کابینہ سے ہٹا دیا تھا۔ ارشد ندیم آج آرمی چیف کے مہمان بنیں گے۔ گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم اور اہل خانہ کے اعزاز میں GHQ راولپنڈی میں آج خصوصی تقریب ہوگی۔ تقریب کے انعقاد کا مقصد گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کی صلاحیت کا اعتراف اور حوصلہ افزائی ہے۔ ارشد ندیم قومی توقعات پر پورا اترے اور ملک کا نام روشن کیا۔ ارشد ندیم کھیلوں کی دنیا پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئے۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ارشد ندیم کو 5 کروڑ کا چیک دیا۔ اجر، ٹوپی اور شیلڈ۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی۔ نارتھ کراچی اور نیو کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش۔ صدر آئی چندی گڑھ روڈ ٹاور کے اطراف میں بھی بوندا باندی۔ موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی ملک بھر میں آج بھی بارش کی پیش گوئی۔ لاہور، اسلام آباد، گجرات سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں بارش متوقع۔ مری، گلیات، مانسہرہ، کوہستان، چترال میں بادل برسیں گے۔ بلوچستان میں بھی بادل رنگ جمائیں گے۔ استور میں سیلابی صورتحال سے متاثرہ سیاحوں کو ریسکیو کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کا چیئرمین NDMA کو ٹیلی فون زمینی رابطہ منقطع ہونے سے پھنسے سیاحوں کو جلد ریسکیو کرنے کی ہدایت۔ فینا گاؤں میں سیلابی ریلے سے بہہ جانے والے 2 پلوں کا متبادل راستہ فراہم کرنے کا بھی حکم۔ شہباز شریف نے کہا سیلابی ریلے میں پھنسے سیاحوں کو جلد ریسکیو کرنے کے انتظامات کیے جائیں۔ ریسکیو ہونے تک سیاحوں کو امدادی سامان فراہم کیا جائے۔ فیض حمید کے بعد مزید 3 ریٹائرڈ افسروں کو بھی فوجی تحویل میں لے لیا گیا۔ ISPR کے مطابق بعض ریٹائرڈ افسروں اور ان کے ساتھیوں کے خلاف مزید تفتیش جاری ہے جو سیاسی مفادات کی ماں پر اور ملی بھگت سے عدم استحکام کو ہوا دے رہے ہیں۔ گرفتار افسروں میں 2 ریٹائرڈ بریگیڈیئر اور 1 کرنل شامل۔ ریٹائرڈ بریگیڈیئر کا تعلق چکوال سے اور فیض حمید کے خاص اور منظور نظر افسر تھے۔ ذرائع کے مطابق تینوں سابق افسر سیاسی جماعت اور فیض حمید کے درمیان رابطہ کاری میں شامل تھے اور بانی PTI کے لیے پیغام رسانی کا کام کرتے تھے۔ فیض حمید کے بعد حکومتی ترجمان کی مزید گرفتاریوں کی پیش گوئی۔ بانی PTI پر لفظی تلوار چلا دی۔ وفاقی وزیر اطلاع عطا طاہر بولے قومی مفاد کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کارروائی فوج تک محدود نہیں رہے گی۔ انتشار پھیلانے والے سیاسی عناصر کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ لگتا ہے مزید گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جائیں گی۔ فیض حمید کے ساتھ ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کا تعلق تھا۔ بانی PTI کی ماں پر ملک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے سازشیں کی جا رہی تھیں۔ ملک کو غیر مستحکم کرنے والوں میں بانی PTI سر فہرست ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جلد قوم سے خطاب میں بجلی بلوں میں ریلیف دینے کا اعلان کریں گے۔ جو کچھ پیپلز پارٹی بھی اتحادی کے نقش قدم پر مزید گرفتاریوں کا خیر مقدم کر دیا۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو بانی PTI کا سہولت کار قرار دیتے ہوئے سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا گرفتاریوں کے تانے بانے 9 مئی تک جا رہے ہیں۔ گرفتاریوں سے ثابت ہوتا ہے انتشار کے پیچھے PTI اور سہولت کار تھے۔ ایک سہولت کار بدنام زمانہ ہے جس نے کرسی پر بیٹھ کر بانی PTI کے مخالفین کو جیلوں میں بند کرایا۔ پاکستان میں بہت سے لوگ ثاقب نثار کے عطاب کا شکار رہے۔ آج تک وہ شخص بانی PTI کے لیے معاملات مینج کرتا ہے۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آج وہ سب لوگ قانون کے شکنجے میں آ رہے ہیں۔
फैज हमीद से तफ्तीश फौज का अंदरूनी मामला है, मुझे इससे क्या। फैज हमीद हमारा साथ था जिसे जाया किया गया, एहतसाब करना है तो सब करे। बानी पीटीआई की डयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज को हटाया था, इस पर मेरी जनरल बाजवा से तल्ख कलामी भी हुई। वजीर दिफा ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात करके मेरे मौक़िफ़ की तायद की। IB की रिपोर्ट्स थी कि वो मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहते हैं। मकसूद नशिस्तों के फैसले पर अमल ना करके ये आइन की तीसरी मरतबा खिलाफ वर्जी करेंगे। PTI को मकसूद नशिस्तें ना देने और आइन की खिलाफ वर्जी पर पार्टी को अभी से तैयार करना। बानी PTI की सहूलतकारी का इल्जाम। सिक्योरिटी इदारों ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट अदयाला मोहम्मद अकरम का मुकम्मल नेटवर्क पकड़ लिया। मजीद 2 अफसरों से पूछताछ, मजीद 6 मुलाजमीन से तफ्तीश होगी। बानी PTI को जेल में मोबाइल फ़ोन की सहूलत फराहम करने के हवाले से भी पेशरफ्त। बानी PTI के सेल की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों की कड़ी निगरानी का भी फैसला। सिक्योरिटी इदारों के एहलकार भी सेल के अतराफ तैनात रहेंगे, जिन्हें हफ्तावार तब्दील किया जाएगा। जेल समाअत के दौरान अमले को सहाफ़ियों, वकला और पार्टी रहनुमाओं से दूर रहने की हिदायत। एक पार्टी दो मौक़िफ़। जनरल बाजवा के मामले पर वज़ीर दिफा और स्पीकर पंजाब असम्बली आमने सामने। ख्वाजा आसिफ का कहना है साबिक़ आर्मी चीफ इक़्तिदार से अलग नहीं होना चाहते थे। मलिक अहमद खान ने दावा जुटला दिया। कहा जनरल बाजवा ने तोसी लेने से साफ इनकार किया। मुस्लिम नून के बड़ों की लाहौर में अहम बैठक। एस्टैब्लिशमेंट का भरपूर साथ देने का फैसला। अवाम को बिजली के महंगे बिलों में रिलीफ देने पर भी तफसीली गौर। इजलास में नून लीग के सदर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, वजीर पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। नवाज शरीफ ने कहा मुश्किल हालात में अवाम को रिलीफ देना हमारी सलाहियतों का इम्तिहान है। पार्टी रहनुमाओं को फैज हमीद केस के मुतालिक बयान देने से एहतियात की हिदायत भी कर दी। फोर जी ना 5G। इंटरनेट तेज रफ्तारी से इंतहाई स्लो जोन में चला गया। डिजिटल मईशत पर खतरात मंडलाने लगे। ऑनलाइन कारोबार करने वालों में अफरा तफरी फैल गई। मामले की सनद कमेटी में भी गूंज। सेंटर्स बरसे तो PTA हुकाम ने कोई शिकायत रिपोर्ट ना होने का बहाना बना दिया। चेयरमैन कमेटी की मसला जल्द हल करने की हिदायत। वजीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ने साइबर सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल जरूरी करार दे दी। कहा इंटरनेट की स्पीड कम होने का नोटिस ले लिया है। दूसरी जानिब टेलीकॉम ज़राए का फायरवॉल की तंसीब का दूसरा ट्रायल कामयाबी के साथ मुकम्मल। 2 से 3 रोज में सोशल मीडिया सर्विसेज मामूल पर आने का दावा। मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। जस्टिस शकील अहमद आज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। पार्लियामेंट के मुलाजमीन और अफसरान का बैरून मुल्क पनाह पर वीज़ा नोट गाइडलाइंस में तब्दीली पर दफ्तर खारजा का रद्दअमल। ज़राए के मुताबिक सनद सेक्रेटेरिएट के ज्वाइंट सेक्रेटरी के अहले खाना का यूरोपीय मुल्क में पला लेना काबिले अफसोस है। वीज़ा नोट के गलत इस्तेमाल से पाकिस्तान को तब्की का सामना करना पड़ा। अफसोसनाक अमल के इंशाफ के बाद वीज़ा नोट गाइडलाइंस तब्दील कर दी। इस अक़दार की मंजूरी के बाद नई वीज़ा नोट गाइडलाइंस का फौरी इतलाक कर दिया गया। अवाम के लिए खुशखबरी। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत माहाना सब्सिडी में इजाफा। ज़राए के मुताबिक मुस्तहिक खानदान को माहाना 2,734 रुपये के बजाय 3,650 रुपये सब्सिडी मिलेगी। ECC ने 60 अरब रुपए के बड़े माली पैकेज की मंजूरी दे दी। 50 अरब वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज और 10 अरब रुपए रमज़ान रिलीफ पैकेज पर खर्च होंगे। BISP के तहत मुस्तहिक खानदान के लिए माहाना सब्सिडी में 916 रुपये इजाफा। BISP के मुस्तहिक खानदान को यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 बुनियादी अशिया पर सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी का इतलाक 30 जून 2024 से 31 जुलाई तक। PTI रहनुमा का बानी से मुलाकात के दौरान सेंसरशिप का इल्जाम। सेनेटर शिबली फराज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमें बानी PTI के साथ सियासी गुफ्तगू से मना किया गया। मुलाकात से पहले 2 घंटे इंतजार कराया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले मुल्क को डंडे के जोर पर तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। मुल्क में सियासी इंतकाम खत्म होना चाहिए।
पंजाब और लाहौर में पीटीआई का तंजीमी ढांचा बिखर गया। हमाद अजहर ने पीटीआई पंजाब की सदारत छोड़ दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुस्ताफी होने का ऐलान करते हुए कहा, पंजाब की तंजीम में बहुत से फैसले मेरिट की बजाय लॉबिंग की बुनियाद पर हुए। ऐसे फैसलों में मेरी राय शामिल थी, ना रजामंदी। बारी पीटीआई तक रसाई के बगैर मामला चलाना मुमकिन नहीं। हमेशा उनका सिपाही रहूंगा। तरीके साहब लाहौर के सदर चौधरी असगर गुर्जर, जनरल सेक्रेटरी हाफिज ज़ीशान रशीद भी मुस्ताफी हो गए। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने हमाद अजहर का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सियासतदानों और अदारों को अपनी हदूद में रहकर काम करने का मशवरा। फैसल करीम कुंडी ने 365 के प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में कहा, एस्टैब्लिशमेंट के सियासी किरदार के बारे में सब जानते हैं। कमर जावेद बाजवा ने आखिरी तकरीर में सियासी मामलात में मुदाखलत तस्लीम की। सीनियर पीटीआई रहनुमा आतिफ खान ने कहा, अगर कमर जावेद बाजवा सियासी मामलात में मुदाखलत कर रहे थे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पैगाम रसानी पर लोगों को पकड़ रहे हैं तो सबका एहतसाब करें। कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी को गलती करार दिया। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस रिपोर्ट। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाला शख्स खलीजी मुल्क से वापस आया है। वायरस की तस्दीक के लिए कौमी इदारा सेहत को नमूना भेज दिया गया। मुतासर शख्स में मामूली अलामात पाई गई। आलमी खबर एजेंसी के मुताबिक अफ्रीकी ममालिक में खुसूसन हंगामी सूरत हाल नाफिज। अफ्रीका में अब तक मंकी पॉक्स के 17,000 से जायद केसेस और 500 से जायद अमवात हो चुकी। बरतानिया ने वायरस से बचने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। पाकिस्तान ने बंगाल टाइगर्स के शिकार के लिए फास्ट पिच तैयार कर ली। रावलपिंडी टेस्ट में पिच फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार होने का इम्कान। कौमी टीम पहले टेस्ट में 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर के साथ मैदान में उतरेगी। दूसरी जानिब मेहमान टीम का कजाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन। बांग्लादेशी टीम कल 17 अगस्त को इस्लामाबाद रवाना होगी। रावलपिंडी टेस्ट 21 अगस्त से शुरू होगा। गजा जंग बंदी मुआहदे पर फौरी पेशरफ्त की उम्मीद नहीं। मशीर व्हाइट हाउस कौमी सलामती जॉन कर्बी ने कहा, ईरान अभी तक इसराइल पर हमले से पीछे नहीं हटा। ईरानी हमला बगैर किसी वार्निंग के हो सकता है। हम ईरान की जानिब से किसी भी रद्द अमल के लिए तैयार हैं। कशीदगी बढ़ने से रोकने के लिए सिफारती कोशिशें भी की जा रही हैं। मशरिक़ वुस्ता में नाजुक सूरत-ए-हाल। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जल्द इसराइल का दौरा करेंगे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानवी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक आलमी सूरत-ए-हाल मुसलसल ख़राब हो रही है। आने वाले दिन मशरिक़ वुस्ता के मुस्तक़बिल का तयन करेंगे। बरतानिया जंग बंदी के लिए सिफारती हमायत जारी रखेगा। साबिक ट्विटर एग्जेक्टिव गैरी रोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के खिलाफ गैर मुनसिफाना बरतरफी केस जीत लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आयरलैंड के लेबर ट्राइब्यूनल का गैरी रोनी को 5,50,000 यूरो जुर्माना अदा करने का हुक्म। आयरिश टाइम्स के मुताबिक ये अब तक की गैर मुनसिफाना बर्खास्तगी पर जीती जाने वाली सबसे बड़ी रकम है।